Hello, good evening and assalamu alaikum. You're watching Sports Tonight. Thank you so much for joining us. This is your weekly dose of sports news and analysis from around the world. क्योंकि इतनी सारी स्पोर्ट्स खेली जा रही है इस वक्त दुनिया में, इट इज़ दैट स्वीट समर विंडो एंड डोंट वरी अगर आप लोगों ने कुछ मिस आउट किया है, वीव गॉट यू ऑल कवर्ड. लेटर हाफ इन द शो हम थोड़ी डीपर एनालिसिस भी करेंगे. आज का शो विल बी फोकस्ड ऑन क्रिकेट, बट बिफोर वी डू दैट, अ क्विक लुक एट द न्यूज़ हेडलाइंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. स्टार्टिंग विद पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़. सेकेंड ODI की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को जो है वो सेकेंड वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दी. बैटिंग फर्स्ट हसन नवाज़ 30 बॉल 36 helped Pakistan to 171 for 7 before rain brought an early end to their innings after just 37 overs. Needing a revised 181 to win, Roston Chase's unbeaten 49 and Sharfain Rutherford's quick-fire 45 helped West Indies to win the match with 10 balls to spare. The series decider takes place on Tuesday at the same venue, the Brian Lara Cricket Academy. क्लीन स्वीप होते होते रह गया जी आयरलैंड से, थैंक्स टू अ स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट फ्रॉम द पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो डबलिन में खेली जा रही है जी ये T20 सीरीज़, और इसके थर्ड एंड फाइनल T20 में पाकिस्तान वर एबल टू डिफीट Ireland, and what a stunning performance that was from Muniba Ali with her unbeaten century helping Pakistan on their way to victory. Orla Prendergast passed a half century as she registered 64 with Ireland setting a target of 155 for 4, and of course in the end the 3-match ODI T20I series was won by Ireland. David and Hazelwood star as Australia make it record 9 T20I wins in a row. The home side were in trouble on 74 for 6, but Tim David constructed a superb innings, and then the bowlers were impressive as well. Australia extended their T20 match-winning streak to a record 9 games and pulled off their lowest successful defence against South Africa despite losing 6 wickets inside the first 8 overs. After an explosive start, Australia stumbled to 75 for 6 before Tim David rescued them, and of course the 7th wicket stand of 59 with Ben Dwashes took them to a match-winning total. This is Mitch Marsh's 22nd match out of 25 matches जिसमें उन्होंने जीते हैं जी for Australia as a T20 captain, so a wonderful streak going for the captain there. Coming back to some local news as well, Tony Hemming resigns as the chief curator. PCB की तरफ से ये notification भी जारी हुई कि Tony Hemming ने resign कर दिया है from his role as the chief curator of Pakistan Cricket Board. He joined in July last year, and he was known for bringing the international expertise and innovation to Pakistan's pitch preparation. Most notably, he introduced the greenhouse concept, a method using pitch covers with heaters to retain surface warmth and prevent winter moisture, especially in fog-heavy regions like Multan. मज़ीद इसके ऊपर हमारे पास details नहीं हैं, but for now this is all we know. Tony Hemming has resigned from his role as the chief curator. Imam ul Haq sends Pakistan a reminder with a stunning 159 for Yorkshire. He was overlooked for the West Indies series, and he set up a 202-run win at Northampton. Pakistan's Imam ul Haq struck a superb 159, his highest List A score, to set up a comprehensive Yorkshire victory over Northamptonshire by 202 runs in the One Day Cup at Vantage Road. Imam averages 47 across a 75-match ODI career with 900s, but has been overlooked for Pakistan's 3-match series against West Indies in Trinidad and Tobago. Pakistan's women cricketers receive a 50% increase in their monthly retainers.
They will receive this 50% increase starting this year. The contracts finalized by the Women's Selection Committee alongside head coach Mohammad Wasim will run from July 1st, 2025 to June 30th, 2026, with the increase applying to all categories. The most notable promotion in the contract goes to Sadia Iqbal, who's currently the #1 T20 bowler in the world. She has been named in category A alongside Captain Fatma Sana, Muniba Ali and Sidra Amin. Pakistan's domestic cricket season is set to kickstart with the Hanif Muhammad Trophy. The domestic season will begin with the Hanif Muhammad Trophy in August. A total of 12 regional teams will battle out for 2 Quaid-e-Azam Trophy spots in the 4-day non-first class tournament that is scheduled to conclude on 25th September. The tournament will see 5 rounds being played in 28 days, with each round consisting of 6 matches. Each team is set to play 5 matches, and the topper of each group will qualify for the Quaid-e-Azam Trophy. An update on the Pakistan Shaheen squad. The Shaheen squad, being led by Mohammad Irfan Khan, will travel to Darwin, Australia today to participate in the top-end T20 series. The 11-team tournament will be held from 14th to 24th August in Darwin, with Pakistan Shaheens facing Bangladesh A in the opening match. 2 changes have been made in the 15-member squad. Batter Haider Ali has been replaced by Mohammad Faiq after being suspended temporarily by the PCB on disciplinary grounds, while fast bowler Mohammad Wasim Jr. has been added to the squad in place of left-arm fast bowler Salman Mirza. Cricketing news from around the world. If you missed it, in case you missed it, and of course we have you all covered. यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, बट ब्रेक से जब वापस आएंगे तो करंटली जो ODI सीरीज चल रही है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लूजिंग दैट latest one-day international against West Indies. What happened there with Pakistan? क्या concerns हैं इस वक्त जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है? And of course, I mean, the lack of ODI cricket currently being planned for the next upcoming year does not help Pakistan in finding answers to some of these problems. We'll discuss all of this on the other side of the जी, thank you so much for joining us back. You're watching Sports Tonight. Break se pehle, we tried to get you all updated on all the cricketing events from around the world. But now it's time to focus and deep dive into the recently concluded one-day international between Pakistan and West Indies, in particularly, of course, in the context of the loss. अभी फ़िलहाल सीरीज़ जो है वो लेवल्ड है, लेकिन जो आखिरी मैच है वो भी इस वीक खेला जाएगा. हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या चेंजेस पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है, चाहे वो अपने 11 में हो या चाहे वो अपने अप्रोच में हो. To discuss all of that, we've been joined by 2 of our very special guests. सबसे पहले, of course, उर्दू commentator and broadcaster तारिक सईद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपके आने का. उनके साथ मौजूद हैं जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन आजम. अस्सलाम वालेकुम हसन, ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन द शो. वालेकुम सलाम, प्लेजर टू बी हियर वंस अगेन. एंड हम तारिक साहब आपसे शुरू करते हैं. सेकंड वनडे इंटरनेशनल जो था, एक तो वैसे ही पहले तो मैं ये गिला कर लूँ, गिला भी खैर मैं किससे ही कर रही हूँ, कोई ख़ास स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन वैसे ही हमें वनडे क्रिकेट इतनी कम देखने को मिलती है, और अब देखने को मिल रही है तो बार बार बारिश बीच में हुई जा रही है, रेन इंटरप्शंस हो रहे हैं, फ्लो ही बार बार टूट रहा था मैच का, तो उस तरह से भी मज़ा नहीं आया ये वाले मैच का. जी, और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ. और वो जो रिजवान ने और पाकिस्तान के 1-2 दूसरे प्लेयर्स ने भी बात की, हसन अली ने, अगर 200 रन होते, 20-25 रन और होते तो पाकिस्तान जीत सकता था ये मैच. तो वो बारिश की वजह से
वो 3 बार इनिंग्स जो है उसमें तातुल आया। और आपको पता है एक बार अगर बैट्समैन सेट हैं दोनों, जिस तरह रिजवान या अब्दुल्ला शफीक जब पहली बार ये खलल आया है तो वो सेट हो रहे थे, वो इनिंग्स को सवार करना शुरू उन्होंने कर दिया था। लेकिन फिर बारिश हुई और फिर वो वेस्ट इंडियन जो हैं वो इतना टाइम ले रहे थे वहाँ आने के लिए, पहुँचने के लिए पिच पे, कि वो पिच जो है वो ज़्यादा ग्रिप होना शुरू हो गया स्पिनर्स की गेंद, इसलिए पाकिस्तानी टीम 171 रन बना सकी। और हसन नवाज़ ने एक बार फिर बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली। शायद वो आखिरी 3 ओवर्स अगर उन्हें मिल जाते, अगर बारिश वो तीसरी बार नहीं होती, तो वो पाकिस्तान को 200 से वो पार भी लेकर जा सकते थे। हुसैन तलत ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन टॉप ऑर्डर में किसी को लंबा जाना चाहिए था, और ये स्कोर जो है वो किसी भी दिन किसी भी टीम के खिलाफ ये कम पड़ जाता है। इनफ नहीं होना था, यही भी हम अभी बात भी करेंगे कि एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ज़रूर नुकसान हुआ ऑफ दिस रेन अफेक्टेड मैच, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह तारिक सर ने भी बात की कि टॉप ऑर्डर में उस तरह से कोई बड़ी इनिंग्स या पार्टनरशिप बिल्ड होते हुए हमें नज़र नहीं आई। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स थोड़ी फेस सेविंग ज़रूर हुई, जो हमें केमियोज देखने को मिले, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट योर थॉट्स ऑन दिस टोटल, बट ऑल्सो ऑन हाउ पाकिस्तान टैक्टिकली रिस्पॉन्डेड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, अगर आप बात करें डिफेंडिंग 171 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। आई थिंक जैसे आप दोनों ने बात की, टोटल का इशू प्राइमरीली ये था कि एक तो फ्लो भी टूटता जा रहा था, और दूसरा ये मसला था कि आपको पता ही नहीं है एज अ बैटिंग यूनिट कि आपने टोटल ओवर्स खेलने कितने हैं, क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर में आउट भी हो चुके हैं। अब जब हसन नवाज और शाहीन ने आखिरी वो 3 ओवर खेले हैं, और मोहम्मद नवाज ने भी, इवन मोहम्मद नवाज वाज टेकिंग हिज टाइम टू सेटल इन, बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि मैं अभी आउट नहीं हो सकता, मुझे आखिरी वाले ओवर मिलेंगे। जब पहला डिले आया तो आपको ओवर पूरे मिल रहे थे, दूसरा आया 40 मिल रहे थे, 3.1 ओवर्स में पाकिस्तान ने 32 रन किए। उसी मोमेंटम से हसन नवाज और शाहीन अगर खेलते रहते तो आप, जैसा तारिक भाई ने बात की, 200 रन तक पहुंच जाते। इशू ये था जब वो मोमेंटम टूटा, हसन नवाज भी अपनी इनिंग्स को सही तरह पेश ही नहीं कर पाए। आपको खैर एग्री करना पड़ा उस टोटल पे, बट जब आपने बॉलिंग स्टार्ट आपने अच्छा किया, हसन अली ने ऊपर से आउट किए, शाहीन ने अटैकिंग बॉलिंग की, 7 ओवर्स के बाद ही आपको रियलाइज हो गया, इवन मोहम्मद रिजवान भी भूल गए थे कि अब स्पिनर्स को लाना है, पावर प्ले खत्म हो गया, तो उन्होंने गेंद वापस ली हसन अली से। लेकिन जब आप अबरार और मोहम्मद नवाज को लेकर आए हैं तो आपको उन्हें थोड़ा लंबा देर लेकर जाना चाहिए था। वहां पे प्रेशर बना, 2 ओवर्स आपने दोनों से करवाए, प्रेशर बना, प्रेशर बनते आपको केसी कार्टी की विकेट भी मिल गई। जैसे ही रदरफोर्ड आए तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो टैक्टिकली मिस्टेक हुई कि आप डिफेंसिव चले गए, कि आपने कहा मैं 5वें बॉलर के ओवर्स इधर नहीं करवा दूं, हालांकि अभी जस्ट 6+ हुआ था रिक्वायर्ड रन रेट। तो हमेशा की तरह एक बार फिर हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि वनडे में कि हमारे बॉलर्स हमें स्टार्ट्स अच्छे दे जाते हैं, इट्स द मिडिल ओवर्स जहाँ पे हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, जहाँ पे हम ऑपोजिशन को ये मौका दे रहे हैं कि वो दोबारा से पार्टनरशिप्स लगाएं, और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाहे वो थ्रू विकेट टेकिंग हो, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो। बट ये प्रॉब्लम हमारी कब सॉल्व होगी मिडिल ओवर्स की वनडे क्रिकेट में? देखिए, एक तो रन्स कम थे जिस तरह पहले बात हुई, और जब रन्स कम होते हैं और आपके पास बॉलर्स 4 ही हों तो फिर और ज़्यादा दबाव आ जाता है, और उस दबाव को ज़्यादा झेलना पड़ता है जो आपके नॉन रेगुलर बॉलर होते हैं, ये पार्ट टाइमर्स होते हैं। और क्योंकि इनको इस तरह की सिचुएशन में कम होती है बॉलिंग करने की आदत। आपने देखा होगा जब जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान जीत रहा था तो ये वहाँ पर साहिम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनके साथ सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बड़े टोटल से पाकिस्तान ने उन मैचेस में वो स्कोर बोर्ड जो है उसको डिफेंड करना था, उसका इतना दबाव नहीं था इन बॉलर्स पर। तो फिर हारिस रऊफ थे, उनका एक अपना इम्पैक्ट था। तो क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा एक इन्फोर्सर की ज़रूरत रहती है, मिडल ओवर में फास्ट बॉलर पर ज़्यादा इन्हिसार रहता है, और कप्तान के लिए हमेशा मुश्किल होता है ये 30 ओवर कराना, 60% ओवर्स कराना इन पिचेस पर स्पिनर्स के साथ, खा कितनी मदद मिल रही हो। हालांकि रात बॉल ग्रिप हो रहा था, बॉल टर्न भी हुआ है, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ या ये सेना कंट्रीज़ हैं, इनमें आपको रन थ्रू नहीं करते स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स ही विकेटें लेते हैं। जिस तरह का शाहीन आफरीदी ने अच्छा कमबैक किया था, नसीम शाह ने पहले मैच में, और कल हमने जेडन सील्स को देखा तो हसन अली ने अच्छा स्पेल किया इब्तिदा में। और यहाँ पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन बन गई थी जब ये कार्सी केटी को आउट किया आकर हमारे लेग स्पिनर ने, लेकिन फिर बस कुछ किस्मत ने भी उनका साथ दिया, मोमेंटम को कैरी नहीं कर सके कहीं ना कहीं। वी लेट गो ऑफ दिस रियली अमेजिंग, ये जो हमें बैक टू बैक ब्रेक थ्रूज मिले थे। बट यू वांटेड टू ऐड
something particularly on this fifth bowling problem issue? Yes. Because ये एक बहुत बड़ा इशू है. रिजवान ने खुद भी इस बारे में बात की है कि जिस तरह तारिक सर ने कहा कि normally आगा and साइम are not like they're decent part-time options, but Yeah. maybe it is something about that second ODI. They were both not having a good day with the ball, and that ended up becoming a much bigger problem because there weren't enough runs on the board. हर मौसम के बॉलर नहीं है अभी वो. एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने सही बात की. और इसका इशू ये है, अगर आप मोहम्मद रिजवान की कप्तानी देखें ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, ऑस्ट्रेलिया में आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए. मेकअप ऐसा था, अच्छी बिरयानी बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कराची की है या लाहौर की, सही है. वहां पे आपने 4 फास्ट बॉलर लेकिन खिलाए, पांचवें की जरूरत ही नहीं पड़ी वहाँ. पड़ी नहीं. 3 आपके साइम यूब ने सिर्फ ओवर किए पूरी 3 ओडीआई की सीरीज में. साउथ अफ्रीका आप जीते, 3-0 जीते, पहले कभी नहीं हुआ. वहां पर जिस तरह तारिक भाई ने बात की, आपने साइम और आगा से बात ओवर्स करवाए. इसका मतलब कि क्या आप अपना 5th बॉलिंग ऑप्शन वो देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएं, आपने खुशदिल शाह, साइम थे नहीं, आगा से ओवर करवाए. इसका मतलब 5th बॉलर आप ढूंढ रहे हैं अभी तक. यहाँ पर पहली दफ़ा उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि हमने 5th बॉलर को अटैक करना है. उन्होंने 7 ओवर्स में 66 रन बनाए, वो पार्ट टाइमर्स के खिलाफ, और वहीं पे मोमेंटम चेंज हुआ. अब देखें, इसमें एक डीपर क्वेश्चन है रोहा जी. वो डीपर क्वेश्चन ये है कि मेकअप ऑफ द साइड क्या है. अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की साइड देख लें ना, इंडिया की दुबई में खेली वो, अब वो कंडीशन जैसा देश वैसा बेस. उन्होंने एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाया फाइनल में, मोहम्मद सिराज. हार्दिक पांड्या था दूसरा फास्ट बॉलर, उसके साथ वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, लेकिन उनके पास ऑलराउंडर्स कितने ज़बरदस्त थे. जडेजा उनके पास, अक्षर पटेल उनके पास. तो आपके पास अच्छे बॉलर्स हैं, पार्ट टाइमर्स नहीं है. इसका मतलब अगर आपने ये मेकअप खिलाना है, जहां आप 7-8 तक बैटिंग अपनी खिला रहे हैं, आपको ऊपर उस 7-8 में रेगुलर आपको ऑलराउंडर चाहिए, जेन्युइन, जिस तरह नवाज है, ठीक है. और यहाँ पे इशू कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे पेस ड्रॉप हुआ है फ़हीम अशरफ का. फ़हीम अशरफ वाज कंसिडर्ड अ जेन्युइन थ्रेट. वो हाई 130s 140s भी टच करते रहे अपनी प्राइम पे. अभी उनकी लेट 120s अर्ली 130s पे आ रही है. तो वहां पे आप थोड़ा सा इस वजह से पाकिस्तान स्पिनर पे रिलाई किया, नवाज को लेकर आए, गेंद ग्रिप भी हो रहा था. अच्छा, स्पिनर्स की परफॉर्मेंस की भी थोड़ी बात करते हैं. नवाज एंड अब्रार बहुत थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की बीच में टू होल्ड ऑन, थोड़े से टाइट स्पेल कराने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं वो कामयाब हो जाते अगर पीछे रन्स होते. बट कैसे देख रहे हैं आप अब्रार और नवाज, ये जो हमारा स्पिन कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको? देखिए, दोनों एंड से जब दबाव पड़ना था इस कम स्कोर में, तो तभी पाकिस्तान जो है वो जीत पाता. लेकिन अब्रार और जो नवाज हैं, आपने इस पूरी इनिंग्स को आप उठाकर देखिए, वो बहुत ही कम ओवर्स हैं जहाँ पर दोनों ने मिलकर बॉलिंग की हो. क्योंकि कप्तान जो है उनको सोचना पड़ता था कि मैं अपना जो 5वां ओवर है, 5वां जो बॉलर है, इसके ओवर्स में निकलवा लूँ किसी तरह. उसी जल्दी में उन्होंने हसन अली को भी हटा लिया को. तो वो आपने अपने हाथ जो हैं वो तकरीबन कटवाए हुए थे मैच से पहले ही. आपके पास सिर्फ 2 फास्ट बॉलर थे इस पिच के ऊपर, जहाँ पर नई गेंद इतनी ज़्यादा सीम हो रही थी. और 3 ओवर्स के बाद मुझे ये लगता है कि शायद थोड़ी सी जल्दी कर गए रिजवान हटाने में हसन अली को. वहाँ उनको 1-2 ओवर्स के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव जो हैं वो नई गेंद पर ही इन कंडीशंस में ही हो सकते थे. हमने देखा है कि ऑफ लेट वो लेट जो है, क्योंकि रात वैसे भी रिवर्स स्विंग का तो फैक्टर आना नहीं था. मैच जो है वो 36-35 ओवर्स का हो गया था. तो उनको नई गेंद पर जब वो विकटें ले रहे थे, अच्छे रिदम में थे, तो वहीं पर मेरा ख्याल है कि वो उनको झपटने देना चाहिए था. चलें अब हम क्योंकि अगला हमारा जो डिसाइडिंग मैच है, ये भी 3 मैच की सीरीज़ में ना एज अ व्यूअर ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जब आपकी सीरीज़ लेवल्ड हो और आखिरी मैच बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, ऑल द मोर एक्साइटिंग. what's next for Pakistan team now beyond this सीरीज़ जो हमने देखा है, बियॉन्ड दिस लास्ट मैच हम देख रहे हैं कि आखिरी मैच में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कंडीशंस को देखते हुए, एंड अभी जो पहले 2 मैचेस थे उनको देखते हुए. डू यू थिंक देयर विल बी एनी चेंजेस आइदर इन द 11 और अदरवाइज टैक्टिकली? आई थिंक टैक्टिकली एक चीज़ तो पाकिस्तान को डेफिनेटली इंप्रूव करनी है कि उन्हें पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइम यूब स्ट्रोक मेकर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 10 ओवर्स में सिर्फ 5 सिंगल्स दिए, विच इज़ एन एस्टोनिशिंग फैक्ट इन इटसेल्फ. इसका मतलब आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी है. दूसरा, आई थिंक पहले मैच और दूसरे मैच में भी अगर मोहम्मद रिजवान का रोल देखें तो वो बहुत की रहा है. पहले मैच में मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह हसन नवाज के साथ स्टार्ट किया, पार्टनरशिप ख़त्म होने तक रिजवान सेट बैटर थे, 50+ उन्होंने स्कोर किया. वो उन्होंने 9 रन किए उस पार्टनरशिप में 20 गेंदें खेलकर. हसन नवाज ने 11 किए 22 गेंदें खेलकर. उनका डेब्यू मैच था. क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन इस
मतलब जल्दी में वो आउट भी हो सकते थे और चांसेस बने भी बाद में। इसी तरह कल के मैच में क्या हुआ है, जब आप अब्दुल्ला शफीक के साथ खेल रहे थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने दोबारा 27 गेंदों पर 10 स्कोर किया उस पार्टनरशिप में। अब्दुल्ला खड़े थे 15 रन पर 20 गेंदें खेलकर। कहने का मतलब ये है कि एज अ सीनियर लीडर जब आपको रियलाइज हो रहा है कि सिचुएशन या मैच का ग्राफ अब नीचे जा रहा है या आपको जिम्मेदारी लेनी है अब रन स्कोरिंग की, तो आपको रन स्कोर करने पड़ेंगे। और सेकेंडली लॉन्ग टर्म चेंज के मुताबिक अगर आप देखें, जेडन सील्स, शमार जोसेफ वो चौथी स्टंप पकड़ लेते हैं मोहम्मद रिजवान की आते ही और उन्हें कहते हैं कि यहाँ से आप मतलब ऑन दी अप ड्राइव कर लें, एंड ही स्ट्रगल्स देयर। A lot of teams do this now. I mean, this is something he has to develop as a batsman or come up with new shots because teams are getting to that plan. Secondly, I think जिस तरह तारिक भाई ने बात की, आपके मिडिल ओवर में बाबर, रिजवान, इवन आगा चाहेंगे कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलें क्योंकि मिडिल ऑर्डर की वो स्टेबिलिटी आएगी तो हुसैन तलत, हसन नवाज को वो एक्सप्रेस करने का मौका प्रॉपरली मिलेगा लोअर डाउन दी ऑर्डर, एंड देन मोहम्मद नवाज कम्स इन एज वेल हु कैन हिट द बॉल अ लॉन्ग वे। वहां पे आपको देखना होगा इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स, आपको ये देखना होगा कि आपने बॉलिंग चेंजेस कैसे मैनेज करने हैं। एंड क्योंकि लेट्स अभी हम क्योंकि बैटिंग के ऊपर बात करें एंड हम स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करें, रिजवान एंड बाबर बोथ have made their comebacks in this ODI series, लेकिन January 2024 से even though the sample size is not as wide as we would like, but their strike rates are really struggling in the one day format. Do you think कि ये कोई अलार्म का साइन है कि रिजवान की 75 की स्ट्राइक रेट है, बाबर की 78 की स्ट्राइक रेट है, या आपको लगता है कि क्योंकि अब वैसे ही अब वनडे क्रिकेट पाकिस्तान इतनी कम खेल रहे हैं तो शायद ये स्टैट उस तरह से जो है वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा इतना? नहीं, देखिए ये जो पिचेस हैं यहाँ पे कई बार आपको वक्त लेना पड़ता है, लेकिन रिजवान जो हैं इनका मसला जो है ये इससे पहले का हम देख रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एक वो हॉल के अंदर हैं, शायद दबाव महसूस कर रहे हैं, उससे पहले भी ऐसा लगा है। तो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ अशफाक साहब हुआ करते थे पीटीवी पे हमारे, वो बहुत पुराने, तो वो कहा करते थे कि इंसान का जो सफ़र है वो अपनी ज़ात से कायनात की तरफ होता है, लेकिन ये रिजवान का मुझे लगता है कि इसके बरक्स लग रहा है मामला। ये पहले मुझे लग रहा था कि ये वो जा रहे हैं उस तरफ जहाँ हम चाहते हैं जी। और लेकिन अब ये रुक से गए हैं। कप्तानी का प्रेशर है क्या है जो चीज़ रोक रही है रिजवान को? जी हाँ, लेकिन ये नंबर 4 की पोजीशन मुझे लगता है इनके लिए सूटेबल भी नहीं है। इस वनडे क्रिकेट में आपको बड़ा वर्सटाइल होना पड़ता है, आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ता है। किसको देखना चाहेंगे आप नंबर 4 पे इस लाइनअप में से? मैं भी इस टीम में सलमान आगा के अलावा तो और कोई नहीं नज़र आता, क्योंकि इससे पहले तैयब ताहिर थे, उनको इस नंबर पे मौका नहीं मिला। शायद वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। हसन नवाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? हसन नवाज आगे चलकर मेरा ख्याल आएंगे इस तरफ, लेकिन अभी शायद जब वो ज़्यादा ओवर्स होते हैं टाइम मिले तो उनको अभी क्यों ये उनके लिए बिल्कुल ही एक नई दुनिया है। हमने देखा है जिस तरह पहला मैच हुआ था, 19 ओवर उनको बैटिंग करने को मिली, तो वो लग रहा था कि वो कहीं बिल्कुल बौखला से गए थे, लेकिन बाद में वो संभल गए रिजवान के आउट होने के बाद। तो शायद तारिक भाई, सॉरी आपकी बात, शायद हुसैन तलत भी इस नंबर पे आ सकते हैं। हुसैन तलत देखिए, जिस दिन ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएंगे उस दिन जाकर फास्ट बॉलर्स को सामना करना और फिर नई गेंद पर वहाँ एक इशू हो सकता है। वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं। अगर आपको स्टार्ट मिल जाता है वो ओपनर्स की जानिब से, पहले 10 ओवर्स जो हैं वो ओपनर्स खेल लेते हैं, तो नई गेंद का अगर असर कम हो जाता है तो फिर इस हुसैन तलत को भिजवाने में कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट अच्छा करते हैं, इन दिनों फॉर्म में भी हैं और अच्छी खासी क्रिकेट खेल कर गए हैं। तो मैच के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक डू यू एग्री कि दिस लाइनअप कैन बी एडजस्टेड? बिकॉज हम T20 में तो देखते हैं कि अब टीम्स बहुत डायनामिक लाइनअप्स लेके सिचुएशन के मुताबिक captains themselves they like switching up combinations depending on what the match is demanding, but one day cricket tends to be a little more consistent in terms of team combinations, and in the past Pakistan के साथ भी हमने यही देखा है कि we have seen players sticking to their numbers, to their roles. Do you think given the lack of 50 over cricket we get to play, हमें consistent batting lineup एक चलाना चाहिए with set players for set roles? That's a really good question, रोहा जी, because क्रिकेट की एवोल्यूशन यहाँ पहुँच गई है कि T20 क्रिकेट में हमने रोस्टन चेज की हालिया सीरीज में पहली रिटायरमेंट भी देख ली। जो पहले T20 क्रिकेट में T20I में प्लेयर बने, रिटायर करके वापस बुला लिया गया और दूसरे प्लेयर भेजे गए।
तो इसी तरह अगर आप इवॉल्व होते होते T20 क्रिकेट वहाँ तक पहुँच गए तो क्यों नहीं कि ODI क्रिकेट में भी आप सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को शफल कीजिए और प्रैग्मेटिक रहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म हल निकालने के लिए आई वुड एग्री विद तारिक भाई कि 4 नंबर पे आपको बहुत डायनामिक प्लेयर चाहिए। और मैं कहूँगा कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की वो जो पार्टनरशिप के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं, बड़े मैचेस उन्होंने जिताए भी हैं। आई थिंक वो माइंडसेट का अप्रोच, वो न्यूजीलैंड सीरीज से ड्रॉप होना, शायद मे बी दैट्स अफेक्टिंग हिम। जिस तरह वो खेले उस चीज़ को अभी या पहले भी उनका कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में फंसते हैं कभी कभी इनिंग्स में, और वो टीम सफ़र करती है उसको लेके। बट एज अ लॉन्ग हॉल मैं हुसैन की इसलिए भी बात कर रहा था कि 70+ फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 100+ लिस्ट ए मैचेस खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस इज़ देयर। पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट कप के टॉप रन स्कोरर थे और नंबर 4 पर आकर बैटिंग कर रहे थे ODI क्रिकेट में। तो ही इज़ समबडी हु कैन, ऑब्वियसली वो कंडीशंस पाकिस्तान में सीमर्स को उस तरह नहीं मिलती, लेकिन ही इज़ समबडी हु कैन बी अडेप्टेड टू दैट रोल। और देखिए आप यंगस्टर्स बहुत खिला रहे हैं इस टीम में जो अपनी बुनियाद अभी बना रहे हैं, अपनी जड़ें जो है वो पक्की कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप अपने एसेट्स तैयार कीजिए। इवन आई बिलीव हुसैन से बॉलिंग भी आप करवाना शुरू कीजिए। जिस तरह अभी यही लग रहा है कि आप 5th बॉलिंग ऑप्शन या साइम देख रहे हैं या आगा देख रहे हैं। थोड़ी सी हम बैटिंग के ऊपर मज़ीद भी बात करना चाहिए हमें, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक जिनको भी हम इन एंड आउट देखते हैं टीम में। अब वो खैर ओपन कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ फ़खर जमान। दोनों मैचेस में वो उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए अपने स्टार्ट्स को, उनकी तरफ से वो उस तरह का मोमेंटम हम नहीं देख सके। आपकी पर्सनली क्या उम्मीदें हैं फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक? हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ही समबडी लाइक हिम एज अ बैटर इन दिस बैटिंग लाइनअप? जी हाँ, जाहिर है कि स्टाइल तो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन स्टाइल के साथ सब्सटेंस उसका होना भी बड़ा ज़रूरी है। और रन्स इनको अब करना होंगे, अब इनको वनडे क्रिकेट में ही ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। और मेरा ख्याल अब वक्त आ गया है कि ये ख़ुद को जो है वो थोड़ा सा अब बड़ा समझना शुरू करें इस टीम के अंदर। फील्डिंग अच्छी की है उन्होंने, कोई शुबा नहीं, आगाज़ भी अच्छा किया। आपको लग रहा है कि अब्दुल्ला को इनफ मौके दिए गए हैं टीम के साथ? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में खिला सकते थे? वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का एक वो ड्रॉप होना है वो एक धचका लग रहा है। तो इस टीम के साथ भी हमें अभी और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नई टीम बन रही है T20 की भी, और वनडे में भी हमें उसी तरफ जाना है। और छेड़छाड़ टीम के साथ नहीं करनी चाहिए कि छेड़छाड़ सेटअप के साथ नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो कहते हैं देखिए वो रोम जो है ना वो एक दिन के लिए नहीं बना था। तो आपने नए कोच आए और मेरा ख्याल है कि अभी उनको वक्त देना पड़ेगा। और फिर ये बाईलैटरल जो सीरीज़ हैं इनमें क्योंकि तजुर्बात आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इसमें हार जीत को भी बहुत ज़्यादा दिल का रोग बनाना नहीं चाहिए। अगर आपकी बड़ी आप चाहते हो कि बड़ी आप छलांग लगाओ, तो कई बार आपको 2 कदम जो है वो पीछे हटना भी पड़ता है। ये आई थिंक दिस वन लाइन सम्स अप द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अफेयर्स राइट नाउ, कि अगर आपने लंबी छलांग लगानी है तो कभी कभार आपको 1-2 कदम पीछे लेने होंगे। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को एप्टली समराइज कर रही है एट प्रेजेंट दिस लाइन बाय तारिक सईद साहब। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक थोड़ा सा और बात करेंगे। Ji, thank you so much for staying with us. You're watching Sports Tonight and we're talking about Pakistan versus West Indies ODI series. The series is currently level at 1-all and the series decider will be all important and very critical, especially in the context of our batting combinations, but especially in the context of bowling combinations and कुछ issues जो middle overs में पाकिस्तान face करे। हम यही बात कर रहे थे break से पहले, and we'll also quickly talk about the elephant in the room, क्योंकि हम हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबर आजम टीम में हो
चाहे वो 0 करें, चाहे वो 20 करें, 40 करें, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा फैंस क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, परहैप्स बिकॉज उन्होंने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स एज अ बैटर इतने हाई सेट कर दिए हुए हैं कि जब वो 0 पे आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। आई डोंट नो, अब इसको आप बेहतर मेरे से हाथी के पाँव में describe सबका पाँव। क्या चीज़? एक सेकंड, हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथी के पाँव में सबका पाँव, व्हाट दैट मींस आई हाथी विल की आस्क हिम ताकत के लेटर। साथ ही सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा, लेकिन अब लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फैंस खास तौर पे कि ओहो बाबर आजम 0 पे आउट हो गए, जैसे कि कभी कोई हिस्ट्री में कभी कोई बैटर 0 पे आउट नहीं हुआ। बट what is your take on Babar Azam currently? What headspace is he in, and will we see something big from him in this decider match? Because it will be a pressure match for sure, even though ज़ाहिर है bilateral series है, लेकिन इस मैच का प्रेशर ज़रूर होगा बाबर आजम पे। आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि बाबर की विकेट इतनी बड़ी है, ये ऑपोजिशन टीम की सेलिब्रेशन से आपको पता लग जाता है, ठीक है। खास तौर पे जब उन्हें जल्दी आउट करें, लेट आउट करें, कभी भी आउट करें, तो आपको एक नज़र आ रहा होता है कि टीम को पता होता है कितना की प्लेयर हमने आउट किया है। सेकेंडली देखिए, हम सारे ये चाहेंगे कि बाबर इस मैच में परफॉर्म करें। उसकी एक वजह ये भी है, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि प्रेशर सिचुएशंस में बाबर का खड़ा होना हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जो है वो एक अंदेशा होगा। और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाबर का प्रेशर मैचेस में, अब बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करना उस तरह नहीं आ रहा जितने कैलिबर के वो प्लेयर हैं। यहाँ तो एक प्लेयर का कैलिबर डिफरेंट होना तो आप उसे डिस्कस ही नहीं करते कि यार चलो किसी दिन कर लिया, नहीं किया। बाबर का रिकॉर्ड, अभी वो सईद अनवर का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल करने लगे हैं 20 सेंचुरीज का, और उनकी 5 सेंचुरी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वैसे ही हैं। और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड जा रहा है, जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री उनके करियर की थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना वो डिप आया उसमें। बट वही बात है, स्टैट्स का मोमेंटम थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ है। इट हैज़ बीन ओवर 700 days Yeah. since we saw an ODI century from the bat of Babar Azam. तो we really hope कि ये जो ड्रॉट चल रहा है इनका सेंचुरीज का, बड़े से बड़े प्लेयर्स ने ये रफ पैच भी फेस किया हुआ है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि अब अगला जो मैच है उसमें बाबर आजम जो है वो एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को प्रूव करें, and coming in that one down position, really he should take charge of the innings. ये वैसे बड़ा हैरानकुन ये स्टैट है, 712 दिन। एक ऐसा दौर था कि जब ये सेंचुरी नहीं करते थे क्लब क्रिकेट में, मुझे याद है यहाँ लाहौर में जब ये क्लब क्रिकेटर थे, तो जिस मैच में इनकी सेंचुरी नहीं होती थी, ये इतना बेचैन हो जाया करते थे कि अपने क्लब के कैप्टन को और क्लब की जो इंतज़ामिया थी उनको ये फोर्स करते रहते थे कि अगला मैच जल्दी करें, क्योंकि आमतौर पर क्लब्स जो हैं वो हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वो अपना वीकली मैच खेला करते थे। तो वो फिर इनके लिए वो जल्दी मैच का एहतमाम कराया जाता था ताकि वो 100 हो इनका और ये इत्मीनान की जो नींद है वो सो सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह का दौर आ गया है इन प्लेयर्स के लिए भी ना, ये दबाव झेलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये मेरा ख्याल है विराट कोहली जैसा प्लेयर जो है वो नहीं झेल सका इस दबाव को, और वो 34-35 साल की उम्र में रिटायर हो गया असल क्रिकेट से। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को भी एक तो ये जितने भी ये बाहर का जो शोर है इसको ये सुनना बंद करें। ये मेरा ख्याल है अपना जो मोबाइल है उस पर सिर्फ ये कॉल ही सुना करें तो बेहतर है। तो ये रन्स इनके आना शुरू हो जाएंगे। और पहले वो सईद अनवर कहा करते थे, एक वक्त था कि उनसे भी रन्स नहीं हो रहे थे, तो वो कहते थे मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो उनकी सेंचुरियाँ होना लगी थी। तो मेरा ख्याल है अब इनको भी सिर्फ जो है अपनी बैटिंग पे ही तवज्जो करनी चाहिए, और हमें उम्मीद है अभी भी इनकी बहुत क्रिकेट बाकी है, ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं। और जाहिर है वो कप्तानी का जो एक प्रेशर आया और जिस तरह से उन्होंने उस प्रेशर को अब कैसे हम कहें मैनेज किया नहीं किया या उनसे वो कैरी नहीं हो पाया, ये विजिबली हमें नज़र आने लग गया था, ख़ास तौर पे आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब सबसे ज़्यादा जो अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रगल उनके नज़र ही आए हैं, तब जब जो एक टाइम पे बाबर यू नो स्पेशली व्हेन वी थिंक बैक टू दैट सेंचुरी इन 2019 यू नो इन इंग्लैंड, हमें वो बाबर चाहिए वर्ल्ड कप्स में और आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट अनफॉर्चुनेटली अब लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स वी हैव not seen those big innings from Babar, but we would love for him to be back in that flair sooner rather than later. Do you think Hassan Azam it can be in that next match against West Indies? Because in terms of pressure, it's not as big as another T20 or a World Cup, ODI World Cup. Absolutely it can be. क्यों नहीं। और हम उम्मीद रखते हैं कि बाबर हमें बहुत सी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे। और
रोहा जी देखिए, जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऐसे मौकों का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि ऐसी इनिंग्स सारे फैंस को याद रहती हैं, देर तक याद रहती हैं। कि सईद अनवर का 194 इन इंडिया आज तक सबको याद है, प्रेशर सिचुएशन में उनकी बहुत सी सेंचुरीज, बाबर की और उससे पहले उनसे न्यूजीलैंड रन नहीं हो रहे थे उस इनिंग से पहले सईद अनवर से। की, उस टूर्नामेंट में वो फ्लो में थे ही नहीं, लेकिन फिर आए और इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी। कहने का मकसद ये है कि बड़े प्लेयर्स ऐसे मोमेंट्स को रेलिश करते हैं कि वो परफॉर्मेंसेस याद रहेंगी और अपने लिए भी उनके एक चैलेंजिंग मोमेंट होता है। तो बाबर डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर्म जिस तरह की उनकी लग रही थी पहले वनडे में भी, जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया था, ही लुक्ड रियली गुड। ही प्लेड ऑल अराउंड द ग्राउंड, ही वाज प्लेइंग द स्पिनर्स वेल। तो डिसीव हो गए डाउन द ट्रैक आए, हो सकता है कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन ये एक थोड़ा सा ना हम ये भी रिदम देख रहे आ रहे हैं जो 712 दिन की बात है। लेकिन कल उनको गेंद भी अच्छी पड़ी है, कल के मैच नहीं, में भी जेडन उनको सील्स ने जिस लेकिन तरह अर्ली बहुत शानदार ब्रेकथ्रूज गेंद। दिए हैं जेडन बिल्कुल सील्स कोई ने। शक नहीं तारिक भाई इसमें, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना 60s 70s का और वहां पे आउट होना, वो 712 दिन में हुआ है काफी दफा। वो जेब नहीं देता है। वो उनके कैलिबर को नहीं जेब देता, वो बिल्कुल सही हम बात है। कन्वर्ट होते हुए नहीं देख रहे दोस्त 50s इनटू 100s। एंड स्ट्राइक रेट की जो डिबेट है वो अपनी जगह अलग है, वो हम मैच के कॉन्टेक्स्ट पे हम बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन ये जो एक ये वाला स्टार्ट है, जिस तरह तारिक सर ने कहा कि ये थोड़ा सा इस पे यकीन लाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। और हम क्योंकि अब सेंचुरीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारी ख़वातीन की जो क्रिकेट टीम है वहाँ पे हमें सेंचुरी जो है देखना नसीब हुई है, क्योंकि हम आयरलैंड के ख़िलाफ़ इस वक्त T20 सीरीज़ खेल रहे हैं। ये भी आखिरी मैच था, इवन दो पाकिस्तान हैड ऑलरेडी लॉस्ट द T20 सीरीज़, बट मुनीबा अली, व्हाट अ stellar performance from her bat. She loves playing against the Irish. This is her second T20 international century and third overall. और तीनों सेंचुरीज उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ की हैं, जो कि एक आई थिंक एक प्लेयर के लिए ये एक कुछ प्लेयर्स की होती हैं फेवरेट ऑपोजिशंस, और आई थिंक मुनीबा की अब आयरलैंड बन चुकी हैं। लेकिन बड़ा खूबसूरत उन्होंने कल जो है पाकिस्तान को 100 नॉट आउट उन्होंने जितवाया भी मैच, और एक अच्छे नोट पे सीरीज़ को एंड किया। जी हाँ, ये काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं विकेट कीपिंग के साथ साथ, क्योंकि पुल शॉट खेलती हैं और उसके अलावा भी इनकी खासी बड़ी रेंज है, जो कि बहुत कम होता है ख़वातीन क्रिकेटर में कि कोई पुल शॉट खेले फास्ट बॉलर्स को। तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। पाकिस्तान को थोड़ा सा मलाल रहेगा कि पहला मैच ये जीत सकते थे, ज़्यादा रन्स नहीं थे इनके लिए करने को। तो दूसरा भी तारिक भाई, जी हाँ, दूसरा तो बिल्कुल आखिरी गेंद तक चला गया। तो बैटिंग अच्छा हुआ है, क्लिक की है उन कंडीशंस में जाकर, और बेहतरी के आसार तो हैं इसमें। और तो कोई चेस शुबा नहीं। करते और हुए पावर प्ले में सेंचुरी रन्स बना रहे हैं, सबसे बड़ी बिल्कुल, बात ये है, बिल्कुल। पावर प्ले में इनके रन्स आ रहे हैं। और चेस करते हुए सेंचुरी करना, आपको हमने इस सीरीज़ में ये भी देखा है कि बल्कि हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हम पावर प्ले को यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन डाउन दी ऑर्डर जो है हमें उस तरह से पार्टनरशिप्स नहीं मिल पाती हैं, और इस सीरीज़ में भी वो चीज़ एक्सपोज हुई है। बट क्योंकि हम अभी मुनीबा की भी बात कर रहे हैं, द वे दैट शी कैरीज हर सेल्फ, द वे दैट शी चूजेज व्हाट गैप्स टू टारगेट, आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट हर ग्रोथ एज अ प्लेयर एंड हाउ मच येट शी इज़ एबल टू अभी अचीव आगे जाके उनके करियर में। आपके क्या थॉट्स हैं ऑन दैट 100 अगेंस्ट आयरलैंड? आई थिंक सबसे मुझे जो ज़बरदस्त चीज़ लगी इस 100 की वही थी कि नॉर्मली वो ना लेग साइड डोमिनेंट प्लेयर कंसिडर होती हैं, तो फ्रॉम स्क्वायर लेग और इवन लॉन्ग लेग टू डीप मिड विकेट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, जिसने तारिक भाई ने बात की कि इसलिए पुल शॉट की बहुत अच्छी प्लेयर है। ठीक है, विमेंस क्रिकेट में विच इज़ नॉट एज यूजुअल एज यू वुड वांट इट टू बी, लेकिन खासियत उनकी ये थी जिस तरह उन्होंने ऑफ साइड रीजन को इस्तेमाल किया। इनफैक्ट उन्होंने कई जगह पे अपने आप को रूम दे के कट शॉट्स भी लगाए, ड्राइव्स भी लगाई। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी रेंज ऐड की है, और ऑपोजिशन के लिए वो मसला बन गया कि अब मुनीबा को बॉल कहाँ करनी है व्हेन शी इज स्ट्राइकिंग इट गुड। सो रियली गुड सेंचुरी फ्रॉम हर। एंड ओवरऑल जिस तरह पावर प्ले का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने एमन फातिमा के साथ भी जिस तरह खेला, उनको इंक्लूड किया गया, उनका डेब्यू था। तो ये नॉलेज ट्रांसफ़र करना और पाकिस्तान का पावर प्ले के अंदर मुनीबा के साथ अटैकिंग प्लेयर्स का होना, आई थिंक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि नाउ इट फील्स लाइक यूर कैचिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज if Pakistan could literally have won the series 3-0, nobody would have been surprised because of the type of cricket they played. And I think you there and thereabouts. It's just about polishing the rest of the things. और हमने बैटिंग ऑर्डर में भी बहुत चेंजेस देखे हैं। तीनों T20 आए में बैटिंग ऑर्डर्स में शफलिंग होती रही, कभी नतालिया परवेज ऊपर आई, कभी आलिया रियाज आई 3-4 पर, सिद्रा अमीन आई।
तो आई थिंक वो भी किसी हद तक एक टेस्टिंग फेज ही चल रहा है, बट सबने परफॉर्म किया अपनी अपनी हद तक, विच वाज गुड। अच्छा, आपको लगता है आलिया रियाज को हम ठीक तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं? बिकॉज उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं एज अ फिनिशर, हम उनको अभी होम सीरीज़ में भी आप देख लें, डोमेस्टिक में देख लें, अभी इस मैच में भी ख़ास तौर पे बड़ा क्रूशल उन्होंने एंड में क्लोज़ किया मैच को, स्कोरिंग 39 ऑफ 27। बट जो बात आपने की कि हम शफल ज़रूर कर रहे थे, आलिया बड़ी एक ज़बरदस्त एक डायनामिक बैटर हैं और वो भी अपने आप, हम उनको बेहतर यूटिलाइज आपको लगता है कि कर सकते हैं एज अ फिनिशर? किया जा सकता है। उनका असल जो रोल है वो वही है, वो हार्ड हिटिंग वो करती हैं और आमतौर पर इनको कम रन्स चाहिए होते हैं और बॉलर्स को जाकर इन्होंने अंडर प्रेशर करना होता है। तो आलिया जो है, क्योंकि इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं इनको आप पिंच हिटर के रोल में भी कभी कभार आजमा सकते हैं, अगर आपको इब्तदाई बल्लेबाजों से उतना तेज़ आगाज़ नहीं मिला तो वो किया जा सकता है। लेकिन जब हम नज़र डालते हैं पीछे जो वर्ल्ड कप हुआ था ये UAE में, वो भी उसकी निस्बत तो ये टीम जो है ये बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। अभी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में यहाँ होम पे ये बहुत अच्छा खेले, नाकाबिल शिकस्त रहे, और उसके बाद ये T20 में भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा ब्राइटर पिक्चर नज़र आ रही है। वी होप कि ये मोमेंटम जो है, इवन दो सीरीज़ जो है जीतने में कामयाब नहीं हो सकी पाकिस्तान टीम, बट इन सीरीज़ के यही का इम्पोर्टेंस जो है वो यही है कि आगे आने वाला जो वर्ल्ड कप है विच इज़ नॉट टू फार अवे नाउ, उसके लिए भी तैयारी हो सके, प्लेयर्स को थोड़ा और गेम टाइम मिल सके, आपके कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको पता लग सके। बट फॉर नाउ द गुड न्यूज़ इज़ कि मुनीबा अली की सेंचुरी को हमने सेलिब्रेट भी किया और शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर टू हैव 2 सेंचुरीज नाउ इन द T20 फॉर्मेट, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई थिंक इसी पॉजिटिव नोट पे आज का प्रोग्राम को भी रैप अप करना चाहिए। तारिक सईद साहब, सेंचुरी भी बनी है वहाँ बिल्कुल डबलिन में सही, ट्रिनिडाड में ना सही कहीं तो दुनिया में सेंचुरी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी एनालिसिस के लिए और इनसाइट का, और दिस इज आवर शो फॉर टुनाइट। वी विल बी बैक सून। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड बिफोर वी कंक्लूड, ऑफ कोर्स, अनदर important reminder that if you are not following us on our social media platforms, my question is why? You're missing out on all of the content. हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सारी जगहों पे प्लीज़ हमें ज़रूर फॉलो करें। लिंक्स आपके साथ शेयर भी हम करें, एंड इफ़ यू डू सर्च अस on Facebook and Instagram, you will be able to find all of our interesting BTS content. So please follow along our journey. अपना बहुत ख्याल रखें, and thank you so much for watching Sports Tonight.